ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थिरदभक्ताद्याः वारिज्याव्रजतं विघ्नं निघ्नं दतं विश्वक्षेणं तमाश्रये। ओम श्री गोविंद गोविंद महाविष्णुस्य प्रवर्तमानः आद्य ब्राह्मणः सेतवराकलया वैवस्वनन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकाव्ये मध्यदेशे समस्त देवता ब्राह्मणा हरिहरसन्निधौ अस्मिन्वर्तमाने व्यवहारिक प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये प्रोदिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे नवम्याम् हस्तानक्षत्रयुक्तायां स्थिरवासरायुक्तायां राजाराष्ट अभिवर्धेद्धं लोकक्षेमाभिवर्धेद्धं अस्य यजमानस्य अंदरू मी पेरु गोत्रम अनुकोंడి गोत्रस्य नामधेयस्य पत्नी समेतस्य पुत्रस्य सपुत्रकस्य सबान्धकस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्धेद्धं सकलकार्य अनुकूल सिद्धेद्धं श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सव आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये। गोविंद। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालं अंगे कृता किल विभूति अभांगलीला மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்கள தேவதாய என்று அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இன்று ஆனி மாதம் முதல் நாள் சனிக்கிழமை உத்திர பல்குனி மற்றும் அஸ்தா நட்சத்திரத்துடன் கூடிய சிறப்பான இந்த சனிக்கிழமை நாளிலே தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவிக்க உள்ளோம். மலரத் தொடங்கும் முகுள மலரினை தேன்னாடும் பொன்னிற வண்டுகள் தேடி சென்று மொய்க்கின்றன. அப்படி தங்க நிற வண்டுகள் மொய்க்கும் முகுள மலர் போன்று எழிலுடன் விளங்குகிறது திருமாலின் திருமார்பு. அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர் எப்பொழுதும் மகிழ்வுடன் இருப்பதுதான். திருமகள் அவரது திருமார்பிலே நீங்காது உறைவதாலேயே அவர் ஆனந்தமாக இருக்கிறார். அத்தகைய உயர்வான அலைமகளின் அருள் பார்வை எனக்கு மங்களம் தரட்டும் என்று அந்த தாயாரை செவித்து கொண்டு இதோ விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாச்சனத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் ஸ்ரீ பத்மாவதியை நமஹா என்று இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக சேவைக்காக வந்திருக்கும் பக்தர்களுக்கு வரவேற்பது திருமதி ஏ அருணா. திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பிருகு மகர்ஷியின் செயலுக்கு பின் வைகுண்டத்தை விட்டு செல்வது எந்த விதத்திலும் நியாயமில்லை என்று எவ்வளவோ ஸ்ரீஹரி சொல்லியும் கூட அந்த லக்ஷ்மி தேவி பிடிவாதத்துடன் தீராத அவமானத்துடன் தன்னுடைய நாதனான ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பிரார்த்தனையை கூட சட்டை செய்யாமல் பூலோகத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து அப்படியே கபில மகர்ஷியின் உதவியுடன் பாதாள உலகிற்கு சென்று விட்டாள். மகாலட்சுமி வைகுண்டத்தை விட்டு சென்ற பிறகு வீட்டிலே இல்லத்தரசி இல்லாத வீடு எப்படி உள்ளதோ அதுபோல்தான் வைகுண்டம் இருந்ததாம். லக்ஷ்மி இல்லாத வைகுண்டத்திலே அந்த மகாவிஷ்ணுவின் நிலைமை மிகவும் துக்கமாக மாறிவிட்டது. ஒவ்வொரு நொடியும் அவருடைய மனதிலே நிராசை வெளிப்பட்டு ஏகாந்தமாக இருந்து விட்டார்.
தீவிரமான விரகதாபத்துடன் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்து அந்த விஷ்ணு பகவான் லக்ஷ்மி தேவியை தேடி கண்டுபிடித்து திரும்பவும் அழைத்து வர சங்கல்பம் செய்து கொண்டார். அவ்வளவுதான். லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி என்று ஒரு வெறியுடன் கூறிக்கொண்டே வைகுண்டத்தை விட்டு லக்ஷ்மி தேவி நடந்து சென்று அந்த பூலோகத்திற்கு புறப்பட்டார். அவளுக்காக அனைத்து இடங்களிலும் தேடினார். தேடி தேடி கிடைக்காமல் மனம் சோர்ந்து விட்டார். ஆனாலும் அவளுடைய இருப்பிடம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. லக்ஷ்மி தேவி இல்லாமல் வைகுண்டம் திரும்பி செல்லக்கூடாது என்றும் சென்றால் நன்றாக இருக்காது என்றும் நினைத்தார். உண்மையில் லக்ஷ்மி தேவி இல்லாத வைகுண்டம் வேலைக்கு உதவாது என்று நினைத்தார். இப்படி பல விதங்களாக கவலைப்பட்டு திரும்ப திரும்ப தேடி தேடி இறுதியில் ஸ்ரீனிவாசன் பூவராக க்ஷேத்திரமான வெங்கடாதிற்கு வந்தாராம். விஷ்ணு பகவான் மீது கோபம் கொண்டிருந்த மகாலட்சுமி ஸ்ரீவைகுண்டத்தை விட்டு நேராக பாதாள உலகிற்கு கபில மகரிஷியின் ஆசிரமத்திற்கு சென்றாள். அந்த மகரிஷி அவளை ஆதரவாக வரவேற்றது. தனியாக வாடும் அவளை தேற்றினார். அவளுக்கு எத்தனை காலம் இருக்க எண்ணினாளோ அத்தனை காலம் இருக்கவும் தவம் செய்து கொள்ளவும் அனுமதி கொடுத்தார். அப்படிப்பட்ட லக்ஷ்மி தேவியானவள் இதோ இங்கே திருச்சானூரிலே பத்மாவதியாக கொலுவீற்றிருந்து பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறாள். அவளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் அந்த தாயாரை தங்க சிம்ஹாசனத்திலே. இதோ விசேஷமான அலங்காரத்திலே அவளை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அகஸ்தியாதி மகரிஷிகள் நிறைய பேர் பாதாள உலகிற்கு சென்று கபில மகர்ஷியின் ஆசிரமத்திற்கு சென்று அங்கே தவம் செய்து கொண்டிருக்கும் லக்ஷ்மி தேவியை பார்த்து இவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்தார்கள். தாயே ஜெகன்மாதா, சிவாலயமணி, யக்ஷாலயமணி, பத்மாவதி புரமணி, தக்ஷிண காசி என்று பிரசித்தி பெற்ற கரவீரபுரத்திலே அர்ச்சா மூர்த்தியாக எழுந்தருளி பக்தர்களை அனுகிரகிக்க வேண்டும். இந்த தலத்திலே மிகவும் மகிமை வாய்ந்தது. இங்கே முக்தி கிடைக்கும். இங்கு கோரின கோரிக்கைகளுடன் அந்த தாயாரானவள் நமக்கு முக்தியை கொடுத்தார். सपितुः प्रासादेष्विनोर् बाहुभ्यां पोष्णाहस्ताभ्याम् आददेनार्यासेदमहज्ञरक्षसो ग्रीवा अपे कृन्दामे यवोऽसि यवयास्मद्वेषो यवयारादेः दिवे त्वां दरक्षाय त्वा पृथिव्ये त्वा शुद्धं तां लोकाप्यत्रिषदा नमसे अग्रेणेरसि स्वावेशवन्नतॄणामे तस्य वित्ता दधित्वा स्थास्यते देवस्त्वा सविता मध्वा नक्त्वसु पिप्पलाभ्य तोषादेभ्यः दिवमग्रेणास्पृक्ष आन्तरिक्षं मध्येना प्रापृथिवे मुपारेणा दृग्गहे याते धामान्युष्मसि गमध्ये यत्र गावो भोरे शृङ्गायासाः अत्राहैतदोरुगायस्य विष्टा परमं पदमव भार्य भोरे
ब्रह्मवने त्वा क्षत्रवने रायस्पोषवने पर्योहामे ब्रह्मा दृग्नः क्षत्रं दृग्नः आयुर्दृग्नः प्रजां दृग्नः वैष्णवः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदज्ञ सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरातं परिवेरासि परित्वा देवेर्विशो व्ययन्तां परिमय्यजमानरायो मनुष्याणां दिवसोनुरस्य घते पृथिव्या लोकारण्यस्ते पशुः उपावेरस्वपादेवान् देवेर्विषप्रागोरुचुजो वह्नेतमान् देवस्त्वष्टर्वसो रमहव्यादे स्वदन्ताम् देवादे रमध्वं बृहस्पते धारयावसोऽग्ने रथस्य त्वा देवः विपाशेन प्रते मुञ्चामि दर्शान् मानुषः देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्यां वोष्णाहस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टन्यो नज्मे अभ्यस्तौषधेभ्यः प्रोक्षाम्यनत्वा मातामन्यतामनो पिता न भ्राता सगर्भ्यो न सखासयोऽध्यः अग्नेशोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि अपां पेरुरस्यापदेवे सदन्तो स्वातञ्चित्सब्दे हविः सन्ते प्राणो वाते न गच्छताज्ञ समङ्गानि यजत्रैः संयजमान आशिषा घृतेनात्रोपसुन्द्राय धाज्ञ सेवादि यजमाने प्रियन्दा आविशा पुरोरन्तरिक्षात् सजो देवेन मातेन अस्य हविषत्मना यजसमस्य तन्वा भवा वर्षो वर्षे यसि यज्ञ यज्ञपादम्भाः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा माशर्भोर्मा प्रदागः नमस्तदानानर्वा प्रेहे घृतस्य कुल्या उपाऋतस्य पथ्य उपा देवेरापशुद्धावोद्भग्य सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वयं परिवेष्टारो भूयास्माम् वाचं देशुं धामि प्राणं देशुं धामि चक्षुस्तेषुं धामि श्रोत्रं देशुं धामि नाभिं देशुं धामि मेढ्रं देशुं धामि पायुं देशुं धामि चरित्राग्नस्तेषुं धामि मनस्ताप्यायतां वाक्ताप्यायतां प्राणस्ताप्यायतां चक्रस्ताप्यायतां श्रोत्रं ताप्यायताम् तत्ते क्रोरयदास्थितं तत्त आप्यायतां तत्ते नित्यायतां तत्ते शुद्ध्यतो समहोऽभ्यः
ओषधत्राय स्वस्वधे ते मैनग्राहिग्नाशे रक्षासां भागासि निरस्तग्नो रक्षाः इदमहज्ञरक्षोऽभितिष्ठामेदमहज्ञरक्षो बाधे इदमहज्ञरक्षो दमन्तमो नयामे घृतेन द्यावा पृथिवी प्राण्डाधां वायोवे स्तोकानाम् जोषानो अग्निराज्यस्य वेतो स्वाहा स्वाहा कृत ऊर्ध्वनाभसं मारुतं गच्छतम् सन्ते मनो मनसा सम्प्राणप्राणेन गच्छताम् रलस्यग्निष्टाश्रेणात्वापस्त्वा समर्णन् पातस्य त्वाध्राज्ये पोष्णारग्न्या ओष्मणो व्यधिषते प्रयदन् वेगाः घृतं घृतपावानप्यबतवसां वसा पावानप्यबता अन्तरिक्षस्य हविरासि स्वाहा दिश प्रदिश आदिश विदिश उद्दिश दिग्भ्य स्वाहा ऐन्द्रप्राणो अङ्गे अङ्गे निधेत ऐन्द्रवो दानो अङ्गे अङ्गे निधेधे देवत्वकर्भोरे सज्ञसमे दोषलक्ष्मा यद्विगोरोपं भवादे देवत्रायं तमवसे सखायो न त्वा माता पितरो मदन्तो समुद्रं गच्छ स्वाहा देवज्ञ सवितारं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दाग्नेश गच्छ स्वाहा या वा पृथिवी गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा नभो दिव्यं गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे हार्द्यच्छ दिवं धूमो गच्छत्वन्तरिक्षं ज्योतिः पृथिवीं भस्मना प्रणस्वाहा मापो मोषधेर्हिग्यसेर्धाम्नो धाम्नो राजज्ञस्ततो वर्णनो मुञ्चः यद्बाहुरग्न्या इति वरुणेति शपामहे ततो वर्णनो मुञ्चः सुमेत्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मेत्रिया तस्मै सन्तु योऽस्मान् वेष्ट्यं च वयं विष्मः इदमापप्रवाहत यत्यं च दुरितं मयि यद्वाहमापि दुद्रोह यद्वाशेप उतानृतम् हविष्मादिरिमा आपो हविष्मां आविवासति हविष्मान् देवो अध्वरो हविष्मां अस्तु सूर्याः अग्निर्वापन्नगृहस्य सदसि साधयामि इन्द्राग्न्योर्भागधये स्थमित्रावरुणयोर्
भागधेये स्थविष्णेग देवानां भागधेये स्था अमोर्या उपसौर्येया भवासौर्यः सः तानो हिन्वन्त्वध्वरम् हृदयत्वा मनसत्वा दिवत्वा सूर्यायत्वा ऊर्ध्व अध्वरं दिवि देवशोहोत्रायच्छ सोमाराजन् विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तो शृणोत्वग्न्यः समेधाहवं मे शृण्वन्त्वापो दिशणाच्च देवीः श्रोताग्रावाणो विदुषो न यज्ञशृणोतो देवस्य मिताहवं मे स्वाहा देवेरापो अपान्नपाद्यो वावोर्बर्ह विश्याः इन्द्रियाभान् मतिन्दमहां तन्देवेभ्यो देवत्रादादशुक्रपेभ्यः येषां भागस्थस्वाहा कार्षेरसमुद्रस्य त्वाक्षत्या उन्नयामे समापो अद्भिरग्मदसमोषधिभिरोषधिः यमग्नपृत्स्वमत्यमभावाजेषु यञ्जुनाः शयन्ता शश्वातिर्षस्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पोष्णाहस्ताभ्याम् आददेनार्यसिदमहग्रक्षसो ग्रीवा अपि गृन्दामि आददे रावासि गभीरमिमम द्वारं कृधिन्द्राय सुषोतमम् उत्तमेन पविनोर्जस्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तम् निग्राभ्यात्तदेव स्वतस्तर्पयतमा मनो मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राणं मे तर्पयत चक्षुर्मे तर्पयत श्रोत्रं मे तर्पयत आत्मानं मे तर्पयत प्रजां मे तर्पयत पशून् मे तर्पयत गणान् मे तर्पयत गणा मे मा वितृषन् इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रमत इन्द्राय त्वादित्यवते इन्द्राय त्वाभिमातिघ्नेश्येनाय त्वा सोमभृतेऽग्नये त्वाराय स्पोषदे यत्ते सोमदिविज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरा अन्तरिक्षे तेनास्मै यजमानायोर्राय क्रुध्यति दात्रे भोजः स्वात्रार्थवृत्रतरो राधो गोप्ता अमृतस्य पत्नेः तादेवेर्देवत्रमय यज्ञन्न यतोपाहोत सोमस्य पिबतः मा भैर्मा संविद्धा अत मेरुर्यज्ञोत मेरुर्यजमानस्य प्रजा भूयोर् मा भैर्मा संविद्धा ऊर्जं दत्स दिशने वेद्वेषते वेलयधा मूर्जं दधाथाम् पापाहतो न सोमाः प्रागपागुदगधराक् सर्वतस्त्वादिश आदावन्तु
अम्बनिष्पारसमरेर्वेदाम् त्वमङ्गप्रसज्ञशिषो देवस्य विष्टमर्त्यम् न त्वदन्यो मघवन्नस्त्यमर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः. ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்கள். அந்த தாயார் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தாரை வார்த்து கொடுக்கும், தாயாரை தாரை வார்த்து கொடுக்கும் ஒரு சன்னிவேசம். அதாவது எம்பெருமானுடைய திருக்கரத்திலே தாயாருடைய திருக்கரத்தை வைத்து அந்த தாயாரை சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் செய்கிறார்கள். அது எதற்கென்றால் 7 தலைமுறைகளுக்கான பிரவரைகளை கூறி அதன் பிறகு அந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செய்கிறார்கள். இதனால் 21 தலைமுறைகள் செழிக்கும், அதாவது மோட்சத்தை கொடுக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பாடு. மகாலட்சுமி கரவேரபுரத்திலே அர்ச்சாவதாரமாக கேவலம் சில கலை அம்சங்களுடன் கொலுவு கொண்டுள்ளதாக பக்தர்களை அனுகிரகித்து இருந்துவிட்டாள். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு முன்பு பிரம்மா, கயன், லவணன், கொலவன் என்ற மூவரையும் தன் மானச புத்திரர்களாக சிருஷ்டி செய்தார். அவன் படைத்த நேரம் என்னவோ தெரியாது. ஆனால் அந்த மூவருமே ராட்சசர்களாக பிறவி எடுத்தனர். அந்த மூவரும் மகா சக்தி படைத்தவர்களே அல்லாமல் குரூரமானவர்களாகவும் மாறிவிட்டனர். இதில் கயாசுரன், லவணாசுரன் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சம்ஹரித்தார். இன்னும் கொல்ஹாசுரன் மட்டும் மீந்திருந்தான். அப்படி கொலவன் என்றால் பன்றிகளை வதைப்பவன் என்று பொருள். துஷ்டனும் மகாவீரனுமான கொலாசூரன் ஸ்ரீ விஷ்ணு மகா தேவர்களின் மீது பகையை வளர்த்து கொண்டான். இவர்களை எவ்விதமாக சாதிப்பது என்று ஆலோசனை செய்ய, என்ன இருந்தாலும் பிரம்மாவின் மானச புத்திரர்கள் அல்லவா, ஆகையால் இவர்கள் அனைவரையும் தவத்தின் மூலமாக மட்டுமே சுலபமாக ஜெயிக்க முடியும் என்று நினைத்தான். அப்படி அந்த மகாவிஷ்ணுவின் பாரியையான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி இங்கே பத்மாவதியாக கொலுவீற்றிருந்து இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய, அதாவது மகா சங்கல்பம் கன்னியாதான கைங்கரியங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள். தாயாரை சேவிக்கலாம். இதோ சாலங்கிருத்த கன்னியாதானத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதானத்தை செய்யும் பொழுது 7 தலைமுறைகளுக்கான பிரவரைகளை கூறுவார்கள். அதன் பின்பு அந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் செய்யப்படுகிறது. ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை நமஹா என்று செபிப்போம். உடனே தான் அரசாளும் பத்மாவதி புரத்தை தன் பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட்டு தவம் செய்ய கிளம்பினான். இவன் சென்ற சிறிது காலத்திற்கே சுகேசி என்ற மற்றொரு ராட்சசன் கொல்லாசுரனின் 100 குழந்தைகளை அப்ரியஸ்ய இவ கோஷாஹ வாவததஹ அப்ரியஸ்ய இவ கோஷாஹ கிரிப்ரஜ இதி கிரிப்ரஜஹ ந ஊர்மயஹ மதந்தஹ ப்ரஹஸ்பதிம் அபீதி அர்க்காஹ அனாவன் ஹகம்சைஹி இவ சகிபிரிதி சகிபிஹி வாவதத்பிரிதி வாவதத்பிஹி அஸ்மன்மயானீத்யஸ்மன்மயானி நஹனாவ்யஸ்யன்னிதி வி அஸ்யன் ப்ரஹஸ்பதிஹ அபிகனிக்ரததித்யபிகனிக்ரதத் காஹ உத பிரேதி அஸ்தௌத் உதிதி ச வித்வான் அகாயத் ஏதி இந்திராசானசிம் ரயிம் சஜித்வானமிதி ச ஜித்வானம் சதா சஹமிதி சதா சஹம் பரிசிஷ்டம் ஊதயே பரா பிரேதி சசாஹிஷே पुरुहूतेति पुरुहूता शत्रून् ज्येष्ठः ते शुष्मः इह रातिः अस्तु इन्द्र एति भर दक्षिणेन वसूनीपतिः सिन्धूनाम् असीरेवतीनाम् त्वं सुतस्य पीतये सद्यः वृद्धः अजायथः इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो इति सुक्रतो
भुवः त्वम् इन्द्रा ब्रह्मणा महान् भुवः विश्वेषु सवनेषु यज्ञयः भुवः नृन् च्यौत्नः विश्वस्मिन् भरे ज्येष्ठः चामन्त्रः विश्वचर्षण इति विश्वाचर्षणे मित्रस्य चर्षणी धृत इति चर्षणी धृतः श्रवः देवस्य सानसिं सत्यं चित्रश्रवस्तममिति चित्रश्रवः तमम् मित्रः जनान् यातयति प्रजानन्निति प्राजानन् मित्रः दाधार पृथिवीम् उताद्या मित्रः कृष्टीः अनिमिषेत्यनिमिषा अभीति चष्टे सत्याया हव्यम् घृतवदिति घृतवत् विधेम प्रेति सह मित्रामर्तः अस्तु प्रयस्वान् यः ते आदित्या शिक्षति व्रतेन न हन्यते न जीयते त्वोतः न एनम् अगम्हः अश्नोति अन्तितः न दूरात् यत् चितिः ते विषः यथा प्रेति देवा वरुण व्रतम् विनीमसि द्यवि द्यवीति द्यवि द्यवि यत् किं च इदं वरुणा दैव्ये जने अभिद्रोहमित्यभिद्रोहं मनुष्या आह चरामसि अचित्ति यत् तव धर्मा युयोऽपि मा नः तस्मात् एन सह देवारीरिषः कितवासः यत् रिरिपुः न देवी यत् वा आघ सत्यम् उत यत् न विद्मा सर्वा आता वीति स्यात् शिथिरा इवा देवा अथ ते स्यामा वरुणा प्रिया सह ॐ पूर्णा पश्चात् उत पूर्णा पुरस्तात् उदिति मध्यतः पौर्णमासीति पौर्णमासी जिगाया तस्यां देवाः अधीति संवसन्त इति संवसन्तः उत्तम इत्युत्तमे नाके इह मादयन्ता यत् ते देवाः अदधुः भागधेयमिति भागधेयम् अमावास्य इत्यमावास्ये संवसन्त इति संवसन्तः महित्वेति महित्वा सा नः यज्ञं पिप्रिहि विश्ववार इति विश्ववारे रयिं नः धेहि सुभग इति सुभग सुवीरमिति सुवीरम् निवेशनीति निवेशनी संगमनीति संगमनी वसूनां विश्वा रूपाणि वसूनि आवेशयन्तीत्या आवेशयन्ति सहस्रपोषमिति सहस्रपोषं सुभगेति सुभगा रदाणा सा नः एति गण् वर्चसा संविदानेति संविदाना अग्निशोमा वित्यग्नि सोमौ प्रथमौ वीर्येण वसून् रुद्रान् आदित्यान् इह जिन्वतं माध्यं हि पौर्णमासमिति पौर्णमासं जुषेथा ब्रह्मणा वृद्धौ सुकृतेनेति सुकृतेन सातौ अथ अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं सह वीरामिति सह वीरा रयिं नीति यच्छतम् आदित्याः च अंगिरसः च अग्नीन् एति अदधत ते दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ प्रेति ऐप्सन् तेषाम् अंगिरसाम् निरुक्तमिति निः उक्तम् हविः आसीत् अथ आदित्याः एतौ होमौ अपश्यन् तौ अजुहवुः ततः वैते दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ पूर्वे एति अलभन्त दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ आलभमान इत्या आलभमानः एतौ होमौ पुरस्तात् जुहुयात् साक्षादिति साक्षात् एव दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ एति लभते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः तु वै दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ एति लभेत यः एनयोः अनुलोममित्यनुलोमं च प्रतिलोममिति प्रतिलोमं च विद्यात् इति अमावास्याया इत्यमावास्यायाः ऊर्ध्वं तत् अनुलोममित्यनुलोमं पौर्णमास्य इति पौर्णमास्यै प्रतीचीनं तत् प्रतिलोममिति प्रतिलोमं यत्
पौर्णमासीमिति पौर्णमासीम् पूर्वाम् आलभेतेत्य आलभेत प्रतिलोममिति प्रतिलोमम् एनौ एति लभेत अमुम् अपक्षीयमाणमित्यपक्षीयमाणम् अनु अपेति क्षीयेत सारस्वतौ होमौ पुरस्तात् जुहुयात् अमावास्येत्यमावास्या वै सरस्वती अनुलोममित्यनुलोमम् एव एनौ एति लभते अमुम् आप्यायमानमित्याप्यायमानम् अनु एति प्यायते आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् पुरस्तात् निरिति वपेत् सरस्वत्यै चरुम् सरस्वते द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् यत् आग्नेयः भवति अग्निः वै यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव ऋद्धिम् पुरस्तात् धत्ते यत् वैष्णवः भवति यज्ञः वै विष्णुः यज्ञम् एव आरभ्येत्य आरभ्य प्रेति तनुते सरस्वत्यै चरुः भवति सरस्वते द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः अमावास्येत्यमावास्या वै सरस्वती पूर्णमास इति पूर्णमासः सरस्वान् तौ एव साक्षादिति साक्षात् एति लभते रुध्नोति आभ्याम् द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः सरस्वते भवति मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय प्रजात्या इति प्रजात्यै मिथुनौ गावौ दक्षिणा समृद्ध्या इति समृद्ध्यै ऋषयः वै इन्द्रम् प्रत्यक्षमिति प्रति अक्षम् न अपश्यन् तम् वसिष्ठः प्रत्यक्षमिति प्रति अक्षम् अपश्यत् सः अब्रवीत् ब्राह्मणम् ते वक्ष्यामि यथा त्वत्पुरोहिता इति त्वत् पुरोहिताः प्रजा इति प्रजाः प्रजनिष्यन्त इति प्रजनिष्यन्ते अथ मा इतरेभ्यः ऋषिभ्य इत्यऋषिभ्यः मा प्रेति वोचः इति तस्मै एतान् स्तोमभागानिति स्तोमभागान् अब्रवीत् ततः वसिष्ठपुरोहिता इति वसिष्ठा पुरोहिताः प्रजा इति प्रजाः प्रेति जायन्त प्रेति अजायन्त तस्मात् वासिष्ठः ब्रह्मा कार्यः प्रेति एव जायते रश्मिः असीक्षया यात्वा अक्षयम् जिन्वा इति आहा देवाः वै क्षयः देवेभ्यः एव यज्ञम् प्रेति आहा प्रेतिरिति प्र इतिः असि धर्मा यात्वा अधर्मम् जिन्वा इति आह मनुष्या आह वै धर्मः मनुष्येभ्यः एव यज्ञम् प्रेति आह अन्वितिरित्यनु इतिः असि दिवे त्वा आदिवम् जिन्वा इति आह एभ्यः एव लोकेभ्यः यज्ञम् प्रेति आह विष्टम्भ इति विस्तम्भः असि वृष्ट्यै त्वा आवृष्टिम् जिन्वा इति आह वृष्टिम् एव अवेति रुन्धे प्रवेति प्रावा असि अनुवेत्यनु वा असि इति आह मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय उशिक असि वसुभ्य इति वसुभ्यः त्वा आवसून् जिन्वा इति आह अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः द्वादश आदित्याः एतावन्तः वै देवाः तेभ्यः एव यज्ञम् प्रेति आह ओजः असि पितृभ्य इति पितृभ्यः त्वा पितॄन् जिन्वा इति आह प्रजा इति प्राजाः மகாலட்சுமி நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அதன் பிறகு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அந்த மகாவிஷ்ணுவனுடைய அனபாயினி என்று கூறப்படும் மகாலட்சுமி தாயார் இங்கே பத்மாவதியாக கொலுவீற்றிருந்து மாங்கல்ய பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாங்கல்யங்களை நாமும் செவிக்கலாம். தாயாரை மிகவும் அவள் பக்தர்களை அருள் பாலிப்பதிலே பகவானுக்கு போட்டி போட்டுக்கொண்டு தன்னுடைய பக்தர்களை காப்பவள்.
அப்படிப்பட்ட தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கொல்ஹாசுரன் என்னவோ மிகவும் அசுரன். அவன் 4 அவனை பிடிப்பதற்காக 4 அவனுடைய சேஷ்டையை எதிர்கொள்வதற்காக 4 திக்குகளுக்கும் ஓடிவிட்டார்கள். இவனை விட கொல்லாசுரன் எவ்வளவோ மேல் என்று அவனுடைய வருகைக்காக காத்திருக்கின்றனர். இதற்கிடையிலே பிரம்மனிடம் அனைத்து வரங்களையும் பெற்று கொல்ஹாசுரன் திரும்பி வந்தான். ஆனால் அந்த கொல்ஹாசுரனால் புத்திரர்கள் வதைக்கப்பட்டனர் என்றும் சுகேசி என்ற அரசன் ராட்சசன் தனது நாட்டை ஆக்கிரமித்தான் என்றும் தெரிந்து கொண்டான். உடனே சுகேசியை சம்ஹாரம் செய்து தனது நாட்டை மீண்டான். ஆனாலும் தேவர்களின் மீதுள்ள கோபம் இன்னும் தீரவில்லை. அதனால் தேவர்களை கூட யுத்தம் செய்ய அழைத்தான். எவ்வளவுதான் வீரமாக இருந்தாலும் தேவர்களை ஜெயிக்க முடியாமல் தோற்றுவிட்டான். அதாவது காரணம் தெரியாமல் திண்டாடினான். அதற்கான காரணத்தையும் கண்டு கொண்டான். தனது தலைநகரமான பத்மாவதி புறத்திலேயே 3 அம்சங்களை சமூகமாக சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி வைகுண்டம் விட்டு பூலோகம் வந்து இங்கு கொலுவீற்றிருப்பதே அல்லாமல் தேவர்கள் அனைவருக்கும் துணையாக இருப்பதினாலும் தான் தேவர்களை சிறிது கூட தோற்கடிக்க முடியாமல் போய்விட்டதே என்றும் தெரிந்து கொண்டான். அதற்கு தேவர்களை எப்படி ஜெயிக்க வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை செய்தான். இந்த ஆலோசனை செய்து கடைசியில் கொல்ஹாசுரன் ஒரு முடிவிற்கு வந்தான். எப்படியாவது தேவர்களுக்கு ஒரு மகாலட்சுமியின் துணை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து அதற்கு தவம் செய்வதென்று ஒன்றுதான் உறுதி என்று செய்து கொண்டான். அப்படிப்பட்ட மகாலட்சுமி தாயார் இதோ இங்கே திருச்சானூரிலே பத்மாவதியாக கொலுவீற்றிருந்து அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள். அந்த மாங்கல்ய பூஜைக்கு ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் மாங்கல்யங்களையும் மாங்கல்ய பூஜையையும். ஸ்ரீனிவாசனே கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை முடிந்து தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சங்கல்பமானம் பிரகல்பமானமுபகல்பமானமுபக்லுப்தம் க்ளுப்தம் ஸ்ரேயோவசீயாயத் சம்பூதம் பூதம் சித்ராகேது பிரபாநாபாம் சம்பான் யோகிஷ்மாவிஸ்தேஜஸ்வானபக்யஸ்தபன்னபிதபன்ன ரோச்சனோ ரோச்சமான சோபன சோபமான கல்யாணः.
सहजानिति सहाजान् विश्वेभिः देवेभिः पृतनाः जयामि जागतेन छन्दसा सप्तदशेनेति सप्तदशेन स्तोमेन वामदेव्येनेति वामदेव्येन साम्ना वषट्कारेणेति वषट्कारेण वज्रेण अपरजानित्यपरजान् इन्द्रेण सयुज इति सायुजः वयं सासह्याम पृतन्यतः घ्नन्तः वृत्राणि अप्रतीयत् ते अग्ने तेजः तेन अहं तेजस्वी भूयसम् यत् ते अग्ने वर्चः तेन अहं वर्चस्वी भूयासम् यत् ते अग्ने हरः तेन अहं हरस्वी भूयासम् ये देवाः यज्ञहन इति यज्ञाहनः यज्ञमुष इति यज्ञामुषः पृथिव्याम् अधीति आसते अग्निः मा आतेभ्यः रक्षतु गच्छेमा सुकृत इति सुकृतः वयम् एति अगन्मा मित्रा वरुणेति मित्रा वरुणा आवरेण्या आरात्रीणां भागः युवयोः यः अस्ति नाकं गृह्णानाः सुकृतस्येति सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधीति रोचने दिवः ये देवाः यज्ञहन इति यज्ञाहनः यज्ञमुष इति यज्ञामुषः अन्तरिक्षे अधीति आसते वायुः मा आतेभ्यः रक्षतु गच्छेमा सुकृत इति सुकृतः वयं याः ते रात्रिः सवितः देवयानीरिति देवयानीः अन्तरा द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी वियन्तीति वियन्ति गृहैः च सर्वैः प्रजयेति प्राजयानु अग्रे सुवहारुहाणाः तरतारजागंसि ये देवाः यज्ञहन इति यज्ञाहनः यज्ञमुष इति यज्ञामुषः दिवि अधीति आसते सूर्यः मा आतेभ्यः रक्षतु गच्छेमा सुकृत इति सुकृतः वयं येन इन्द्राय समभर इति सम् अभरः पयागंसि उत्तमेनेत्युत्तमेन हविषा जातवेद इति जातवेदः तेन अग्ने त्वम् उत वर्धय इमं स जातानामिति स जातानां श्रैष्ठ्ये एति धेहि एनं यज्ञहन इति यज्ञाहनः वै देवाः यज्ञमुष इति यज्ञामुषः सन्ति ते एषु लोकेषु आसते यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवेशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పనిగాదు ఇంక నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ